گئی ہے. 8-10 مہینے سے زیادہ یہ حکومتیں چلنا ہی نہیں ہے. 2.5-3 مہینے پہلے ہی الیکشن کا رزلٹ بک چکا تھا, پیمنٹ بھی ہو گئی تھی. یہ بتاؤ وہ کون سی فیکٹری ہے جس میں 8 لاکھ اور 10 لاکھ ووٹ لینے والی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی تو کراچی میں ہار جائے, اور صرف 1 لاکھ سے بھی کم جنون ووٹ لینے والے ان کو 17 قومی اور 30 صوبائی دے دی جائیں. 177 سیٹوں میں سے جو ہماری ہونی چاہیے تھی 92 صرف ہمیں دی گئی ہیں. 85 سیٹس fraudulently ہم سے لی گئی ہیں. They cannot fool us by taking your symbol away. This was a magnificent effort by the people of Pakistan. نکلنا ہے آپ نے خان کے لیے, جمہور کے لیے, پاکستان میں حقیقی آزادی کے لیے. السلام علیکم, this is Moeed Pirzada in Washington. On 17th February 2024, سیٹرڈے کے دن پاکستان کے حوالے سے بہت سی امپورٹنٹ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں, اور کم از کم ایک ڈیولپمنٹ افغانستان کے حوالے سے ہے جہاں یونائٹڈ نیشن دوحہ میں ایک بہت امپورٹنٹ انیشیٹو لے رہی ہے افغانستان کے حوالے سے. یہ اور بات ہے کہ افغان طالبان نے ابھی تک اس میں پارٹیسپیشن کو کنفرم نہیں کیا. لیکن پاکستان سے آغاز کرتے ہیں, اور زیادہ تر ڈیولپمنٹس کا تعلق پاکستان سے ہے, جہاں سب سے امپورٹنٹ میرے نزدیک وہ ڈیولپمنٹ ہے جہاں تحریک انصاف, پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر ایک بڑی بھرپور پروٹیسٹ کیمپین, احتجاج کا ایک سلسلہ شروع کر رہی ہے الیکشن پہ ریگنگ کے حوالے سے. اور یہ احتجاج نہ صرف پورے پاکستان میں شروع ہو رہا ہے بلکہ یہ دنیا بھر کے مختلف شہروں میں جہاں جہاں پاکستانی پائے جاتے ہیں وہاں اس احتجاج کا سلسلہ شروع ہوتا نظر آ رہا ہے, امریکہ میں, برطانیہ میں, آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ میں, یورپ میں. لیکن یہ کوئی فاسٹ اینڈ فیوریس قسم کا احتجاج نہیں ہے بلکہ یہ ایک بڑی سلو اینڈ اسٹڈی قسم کی کیمپین ہوگی جس میں لگتا ہے کہ تحریک انصاف باقی تمام سیاسی جماعتوں کو, مختلف دھڑوں کو, مختلف طبقہ فکر کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرے گی. اور جب آپ اس کے خط و خال کو آپ دیکھتے ہیں, اس کے فیچرز کو آپ دیکھتے ہیں, تو آپ کو یہ احساس ہوگا, جیسے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا, کہ عمران خان اس سٹیج کے اوپر ایک بہت ہی پر اعتماد طریقے سے, کانفیڈنٹ طریقے سے, بہت ہی سلجھی ہوئی, بہت ہی میچور, بہت ہی سوفیسٹیکیٹڈ پالیٹکس جو ہے وہ کھیل رہے ہیں, جس نے ان کے پاکستان کی جو طاقتور جرنیل صاحبان ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت جو ہے وہ کھڑی کر دی ہے, اور ہر آنے والے دن سے کے ساتھ ان جرنیل صاحبان کے لیے مصیبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. لیکن سب سے پہلے, اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیلات کی طرف چلیں, میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ یہ پالیٹکس ہے کیا, جو مختلف کی ڈیولپمنٹس ہیں اس کا میں کوئکلی ذکر کرتا چلا جاؤں. اس سٹیج کے اوپر جب ہم بات کر رہے ہیں, آج ہی کے دن میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہونی ہے غالباً لاہور کے اندر, کیونکہ اب پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این سے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ اگر ہمیں آپ کو سینٹر میں سپورٹ کرنا ہے حکومت بنانے کے لیے, جہاں وہ خود منسٹریز نہیں لینا چاہتے اور صرف کانسٹیٹیوشنل پوزیشن دینا چاہتے ہیں, پریزیڈنٹ کی, چیئرمین سینٹ کی, نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کی, گورنرشپ لینا چاہتے ہیں پی ایم ایل این سے, وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ پنجاب کے اندر بھی حکومت میں شیئر دیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سینٹر میں سپورٹ کریں تو آپ ہمیں پنجاب کی حکومت میں شیئر دیں, ہمیں حصہ دیں. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ کر گئی ہے پی ایم ایل این کے لیے. پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ جیو نیوز کی ایک کم از کم سٹوری ایسی ہے, بہت زیادہ اور اخبارات نے اس کو کور نہیں کیا, لیکن وہاں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پی ایم ایل این کی ایک ایسی انٹرنل میٹنگ ہوئی تھی گزشتہ 48 گھنٹے میں جسے نواز شریف صاحب نے لیڈ کیا, اور اس میٹنگ کے اندر پی ایم ایل این کے جو مختلف پارٹیسپینٹس تھے اس میں محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی تھیں, اسحاق ڈار صاحب بھی تھے, وہاں پر احسن اقبال صاحب بھی تھے, وہاں پر ملک احمد خان صاحب بھی تھے, اور بہت سے لیڈرز تھے. اور وہاں پر اکثر جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کی اکثریت جو تھی, انہوں نے پریڈومیننٹلی ان کی خواہش یہ تھی کہ پی ایم ایل این کو سینٹر میں حکومت, فیڈرل گورنمنٹ بنانی ہی نہیں چاہیے, اور ہمیں صرف پنجاب میں حکومت بنانی چاہیے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی ہم سے بہت زیادہ ناجائز قسم کے مطالبات سینٹر میں کر رہی ہے, تو سینٹر میں ہم حکومت نہیں بنائیں گے. اب یہ محض ایک خبر یا تو لگوائی گئی ہے فیلر کے طور پہ, بیکاز جب خبر ایک جیو میں یا نیوز میں لگتی ہے تو آپ کو تھوڑا سا شک بھی ہوتا ہے اس خبر کی صحت پہ کہ یہ خبر واقعی اصل میں ایک خبر ہے, یہ ڈیولپمنٹ ہے, یا یہاں پر ایک میسج یا کمیونیکیشن جو ہے وہ دی جا رہی ہے. اور یہاں پہ مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک فیلر چھوڑا گیا پیپلز پارٹی کے لیے یا ایک فیلر چھوڑا گیا اسٹیبلشمنٹ کے لیے. لیکن اب جب پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی ایک پوزیشن مانگ رہی ہے تو ایک یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے, اس کو ایبزارب کرنا جو ہے وہ ضروری ہے.
ایک ڈیولپمنٹ وہ بھی ہے جہاں عمران خان کے وکلا جو ہے یا تو پٹیشنز اور اپلیکیشنز ڈال چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے حوالے سے، بشرا بی بی کے حوالے سے اور شاہ محمود قریشی کے حوالے سے، یا اس پروسیس کو کمپلیٹ کرتے نظر آتے ہیں. ریلیف تو ان کو اس اسٹیج پہ شاید نہ ملے اتنی جلدی، لیکن یہ لیگل کاروائی ان کے لیے کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ان دنوں کے اندر، ان ڈیڈ لائنز کے اندر جو مہلت ہوتی ہے، یہ پٹیشنز یا اپلیکیشنز نہیں ڈالیں گے تو پھر یہ اس کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ گزر جاتی ہے. ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے اور جو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ بشرا بی بی جنہیں بنی گالہ میں بند کیا گیا ہے ایک سنگل کمرے میں، ان کی جو بہن ہے بڑی مریم ریاض بھٹو، جن کا چند دن پہلے میں نے انٹرویو کیا تھا، جسے بہت لوگوں نے آپ میں سے دیکھا، وہ بہت پریشان ہیں، کنسرنڈ ہیں، تشویش میں ہیں. ان کا کہنا یہ ہے، ان کی اطلاع یہ ہے کہ ان کی جو سسٹر ہیں بشرا بی بی، ان کی طبیعت خراب ہے، ان کی طبیعت بہت خراب ہو چکی تھی، وہ پہلے سے تھوڑی سی بہتر ہیں، انہیں ڈاکٹر تک ایکسیس نہیں ہے اتنے دنوں سے جب سے وہ وہاں پہ بند ہیں. ان کو محض ان کی چھوٹی بیٹی کو 10 منٹ کے لیے ان سے ملنے دیا گیا، کسی اور کی ان سے ملاقات نہیں ہو پائی، اور وہ خاصی جو ہے مشکل میں ہے. اور باوجود اس کے کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن ڈالی تھی کہ انہیں بنی گالہ کے اس کمرے سے نکال کے اڈیالہ جیل میں منتقل کیا جائے، اس پہ ابھی تک نہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی پیش رفت کی ہے، نہ ہی حکومت نے کوئی پیش رفت کی ہے. یہ کنسرن ان کا ہے، انہوں نے اس حوالے سے کئی ٹویٹس کیے ہیں. ان کے ٹویٹس کے بعد یہ چیز پاکستان کے اخبارات اور ہندوستان کے اخبارات کی ہیڈ لائنز بنی ہے. کم از کم ایک ہیڈ لائن ایسی بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے بہت تشویش کا اظہار کیا ہے، لیکن مریم جو ہیں، چونکہ ان کی بہن ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف اس ایشو کو اتنا نہیں اٹھا رہی جتنا شدت سے اس ایشو کو ان کو اٹھانا چاہیے. علی محمد خان صاحب نے جب عمران خان صاحب سے ملاقات کی جیل میں اڈیالہ میں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس کے اوپر بہت سی ہیڈ لائنز بنی، جس میں عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب ان کی حکومت آئے گی تو کسی سے سیاسی بدلہ ریونج نہیں لیا جائے گا، بلکہ اللہ کے رسول نے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو روایت قائم کی تھی فتح مکہ کے موقع پہ، جہاں اپنے تمام مخالفین کو معاف کر دیا تھا، اسی روایت کو زندہ رکھا جائے گا. کسی بھی سیاسی مخالف سے کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا. اور وہ وہاں پہ ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن کمیشن کی بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ بات کرتے ہیں، جیسے نیلسن مینڈیلا کا انہوں نے ذکر کیا. یہ اور بات ہے کہ جب میں اس کا سوچتا ہوں مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ عمران خان تو چلیں ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن کمیشن میں ہمیشہ ہی کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ غلطی ہو گئی، ہمیں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس نہیں بھیجنا چاہیے تھا، ہمیں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی، ہمیں فلاں چیز نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن اور پاکستان کا کوئی سیاسی لیڈر میں نے دیکھا نہیں، نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب کی طرف سے، جس نے کبھی یہ کہا کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم محترمہ بینظیر بھٹو کو ہماری سیاسی جماعت کے لوگ پی ڈی ٹیکسی کہتے رہے، ہم نے قابل اعتراض تصاویر ان کی ہیلی کاپٹروں سے گرائیں، ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے جنرل مشرف جو ہے اس کو میں نے آؤٹ آف دا ٹرن چیف بنا دیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. میں 2000 میں ڈیل کر کے پریزیڈنٹ کلنٹن اور سعودیز کے ذریعے باقی ساری جماعت کو یہاں چھوڑ کے باہر چلا گیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے فلاں چیز کی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اگر یہ ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن کمیشن بنے گا تو عمران خان اور تحریک انصاف اور ان کے ساتھ ہم مختلف قسم کے اعترافات یا ایڈمیشنز کرتے رہیں گے. مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی اور یہاں پہ ایڈمیشن کرے گا. بہرحال رؤف حسن صاحب نے ایکسپریس ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے لیکن ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے اور ٹاکس کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. میں پورا ایک منظرنامہ جو ہے وہ آپ کے سامنے بلڈ اپ کر رہا ہوں، پھر میں پروٹیسٹ کی طرف آتا ہوں. بیرسٹر گوہر علی خان ایک سے زیادہ دفعہ یہ کلیریفائی کر چکے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں بھی. بیرسٹر شیر افضل مروت کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک بار پھر انہوں نے یہ کلیریفائی کیا کہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے احتجاج کرنا اور پالیٹکس کر سکتے ہیں، یعنی جماعت اسلامی، JUIF، ANP، TLP، مجلس وحدت المسلمین. لیکن 3 جماعتوں کے ساتھ ہماری کوئی کوآپریشن نہیں ہوگی، کوئی ہم ان کے ساتھ مل کے چیز نہیں کریں گے. اور 3 جماعتیں کون سی ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی زرداری صاحب کی، PMLN اور MQM. یہ اور بات ہے کہ MQM کے جو بانی اور فاؤنڈر ہیں لندن سے جناب الطاف حسین صاحب، وہ مسلسل عمران خان اور تحریک انصاف کے فیور میں اور سپورٹ میں ٹویٹ کرتے ہمیں نظر آتے ہیں. اور پھر افغانستان کی سچویشن اب چلتے ہیں PTI تحریک انصاف کی پروٹیسٹ کی طرف، جس کی لوکیشنز ناردرن پنجاب کے اندر، اپر پنجاب کے اندر لوکیشنز دے دی گئی ہیں. ہم نے تمام صعوبتیں برداشت کی، اغوا ہوئے، مارے گئے، قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، تو یاد رکھ ایک دفعہ پھر اس کو جیلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. نکلنا ہے آپ نے خان کے لیے، جمہور کے لیے،
पाकिस्तान में हकीकी आजादी के लिए लाखों में निकलोगे तो इसी तरह ये लोग जलील और रसवा होंगे जिस तरह 8 फरवरी को जलील और रसवा हुए हैं। जिन लोकेशंस का ऐलान किया गया है उसमें इस्लामाबाद और रावलपिंडी है, उसमें जेहलम है, उसमें चकवाल है, उसमें अटक है, उसमें खुशाब है, उसमें सरगोदा है, उसमें मियाँ वाली है, उसमें भक्कर है और चंद और इसी किस्म के शहर या मुकामात हैं। ये प्रोटेस्ट जो है किसी एक किस्म की जगह पे नहीं हो रही, कहीं ये प्रोटेस्ट इलेक्शन कमीशन के किसी रीजनल दफ्तर के बाहर हो रही हैं, कहीं ये डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर हो रही हैं, कहीं किसी मशहूर चौराहे या चौक या पुल के ऊपर हो रही हैं। डिफरेंट जगहों की लोकेशंस दे दी गई हैं। जैसा मैंने आपको पहले कहा है कि ये एक स्लो एंड स्टडी किस्म का प्रोसेस होगा। तहरीक इंसाफ का चैलेंज जो है बेसिकली तौर पे वो है भी यही कि इसको एक हल्की आंच के ऊपर रखना है, इसे एक फास्ट एंड फ्यूरियस प्रोसेस में कन्वर्ट नहीं करना। और यहाँ पर तहरीक इंसाफ की जो कोशिश होगी, जो मुझे समझ आई है और होनी भी चाहिए, कि तहरीक इंसाफ की कोशिश करेगी कि उसकी कोएलिशन बिल्डिंग हो, उसके अलाइंसेस हों बाकी सियासी जमातों के साथ, मुख्तलिफ किस्म के सियासी धड़ों के साथ। उसकी एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि अगर वकला के साथ तहरीक इंसाफ एक अलाइंस करे कि ये जो पूरे शहरों में, इस्लामाबाद में भी दफ़ा 144 लगा दिया गया है, ये जो एक रीत चल निकली है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां भी कोई आप प्रोटेस्ट करना चाहें वहां पता चलता है कि डिप्टी कमिश्नर साहब उस प्रोटेस्ट से 4 घंटे पहले 6 घंटे पहले कहते हैं कि मैंने दफ़ा 144 लगा दिया है। तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान में वकला के साथ, बार एसोसिएशन के साथ मिलकर एक अलायंस बनाना चाहिए अगेंस्ट दिस आर्बिट्री इम्पोजिशन ऑफ सेक्शन 144। आखिर सेक्शन 144 नाफिज करने की कोई वजह तो हो। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ का जो एक बहुत बड़ी उस पर क्रिटिसिज्म है वो ये कि उसके कोई हिस्ट्री और बैकग्राउंड नहीं है एक पॉलिटिकल अलायंस को रन करने का। उसने हमेशा अपनी स्ट्रगल जो है वो तन तनहा की है। तो यूं तहरीक इंसाफ का ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि कैसे वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ मुख्तलिफ जगहों पे, खैबर पख्तूनख्वा में उनका एक डिफरेंट अलायंस हो सकता है, नॉर्दर्न पंजाब में डिफरेंट अलायंस हो सकता है, सदर्न पंजाब में डिफरेंट अलायंस हो सकता है, कराची में डिफरेंट अलायंस हो सकता है, सिंध में डिफरेंट अलायंस हो सकता है, बलूचिस्तान में डिफरेंट अलायंस हो सकता है। तो इन अलायंसेज एंड कोएलिशन बिल्डिंग को तहरीक इंसाफ कैसे लेके चलेगी, ये उसकी मेच्योरिटी का एक बहुत बड़ा टेस्ट है। अलायंसेस के लिए ज़रूरी नहीं होता। इमरान खान साहब ने हमेशा उस और तरह से इसको देखा है। अलायंसेस बड़े अलामती किस्म के भी होते हैं, टोकन किस्म के होते हैं। मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त अच्छी एग्जांपल इसकी मैं आपको देता हूँ कि अमेरिका को किसी भी मुल्क अफगानिस्तान, इराक, सीरिया से लड़ने के लिए किसी कोएलिशन की ज़रूरत नहीं होती। अमेरिका में माशाल्लाह इतनी खौफनाक किस्म की अस्करी ताकत है कि रूस और चीन को छोड़ के अगर किसी भी मुल्क को अमेरिका को ठीक करना पड़े तो मगरब से पहले पहले उस मुल्क की फौज का अमेरिका फैसला कर सकता है। और अमेरिका ने कोई यूक्रेन किस्म की जंग नहीं लड़नी होती। लेकिन आपने देखा कि अमेरिका जब इराक में जाता है लड़ने के लिए या अफगानिस्तान में जाता है तो 30 ममालिक को साथ ले जाता है और उनमें से अक्सर ममालिक ने एक बटालियन भेजी होती है, कोई हेल्थ की, या जर्मनी एक लेडी डॉक्टर भेज देता है या कोई नर्सें भेज देते हैं लोग, लेकिन वो कहने में एक कोएलिशन बन जाती है जिसकी एक मॉरल वैल्यू होती है। इसी तरह तहरीक इंसाफ को इस स्टेज पे एक कोएलिशन बिल्डिंग करनी है और हर किस्म के सियासी धड़े को उन 3 सियासी जमातों को छोड़ के, पीपल्स पार्टी, PMLN एंड MQM, उनको हर किस्म के धड़े को अपने साथ रखना है। ये एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड एंड ये पॉलिटिक्स है। पाकिस्तान में इससे पहले ऐसी पॉलिटिक्स हुई है और उसने रिजल्ट डिलीवर किए हैं। जो MRD की मूवमेंट थी 1980s की, उसने जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत पे बहुत ज़्यादा दबाव डाला था, बहुत प्रेशर डाला था। इसी तरह जो वकला की तहरीक थी वो भी इसी तरह से एक स्लो एंड स्टडी मूवमेंट थी। और बांग्लादेश में इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जहां स्लो एंड स्टडी किस्म की जो कैंपेन्स हैं वो अल्टीमेटली हुकूमतों को जिच कर देती। अच्छा, इसी तनाज़ुर में फ्राइडे के दिन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के मैरियट होटल के अंदर जो इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफ करने के लिए एक सेमिनार किया, जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। उसकी झलकियां भी मैं आपको साइट पे दिखाता हूँ। जिक्र मैंने उसका पहले भी किया था, उस वक्त मैं इसकी ग्लिम्पसेस आपको नहीं दिखा सका था। ये कामयाब तो था लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने इसका असर कबूल भी किया, इसके पैशन का, इसके जज्बे का, इसके अंदर जो जोश व खरोश था, जिस किस्म की एक गैदरिंग थी। लेकिन इसमें अंग्रेज़ी बहुत कम थी। ज़रूरत इस चीज़ की है कि कुछ दिनों के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ एक ज़्यादा फोकस किस्म का इंटरनेशनल मीडिया के लिए, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, लीगल बॉडीज़ के लिए और ख़ुद पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के इलेक्शन ऑब्जर्वर ग्रुप हैं, जैसे फाफन है, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसमें बुलाना चाहिए, पतन है सरवर बारी साहब का जो कोएलिशन है मुख्तलिफ ग्रुप्स का, और फिर पाकिस्तान की जो अंग्रेज़ी के अखबारात हैं, इनको बुलाकर भी तहरीक इंसाफ को अंग्रेज़ी के अंदर एक ब्रीफिंग देनी चाहिए
उस वक्त तक इनका डाटा मजीद इम्प्रूव कर जाएगा, इनकी वेबसाइट भी मजीद इम्प्रूव कर जाएगी, बन चुकी है खासी बेहतर। और वहाँ पर सलमान अकरम राजा, शंदाना गुलजार और इस किस्म के लीडर्स जो वेल वर्स्ड हैं, इंग्लिश के अंदर बड़े आर्टिकुलेटेड हैं, उन्हें इस किस्म के सेमिनार को लीड करना चाहिए। इसमें एक मल्टी मीडिया प्रेजेंस भी हो सकती है कि दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे, बरतानिया, अमेरिका से डिफरेंट लोगों को आप वीडियो लिंक्स के जरिए इसमें शामिल कर सकते हैं। अब जैसे कि पिछले वीलॉग्स में मैंने जिक्र किया, मुसलसल मैं जिक्र कर रहा हूँ कि सिंध में और बलूचिस्तान में भी बड़े मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और इसी तनाजुर में, कॉन्टेक्स्ट में, पीर पगाड़ों ने जामशोरों में, हैदराबाद जामशोरो जंक्शन जो M9 है, वहाँ पे एक दिन पहले जो बहुत बड़ा उनका इज्तिमा हुआ, बहुत बड़ी गैदरिंग थी हुर्सों की, हुर्स की, जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के प्लेटफॉर्म से की गई, लेकिन उसमें और जमातें भी शामिल थीं। उसके बारे में तरह तरह की ओपिनियन जो है वो पाई जाती है। बहुत से लोगों को शक ये है कि चूंकि इसके मुख्तलिफ और मल्टीपल आस्पेक्ट्स हैं, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता कि पीर पगाड़ों का और हुर तहरीक जो है उसका पाकिस्तान की फ़ौज से एक ट्रेडिशनल रवायती ताल्लुक रहा है। वो कह भी नहीं रहे कि हमारा ताल्लुक ख़राब हो गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि हुरों को इकट्ठा इसलिए किया गया और पीर पगाड़ों साहब को ये कहा गया कि जलसा करें ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस को, क्योंकि आसिफ अली जरदारी को इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर एक पैगाम देना चाहती है, उनकी डेंटिंग पेंटिंग करना चाहती है, उनको डराना चाहती है। तो बहुत से लोगों को इसका शक है। लेकिन इसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पीर पगाड़ों का इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, वो उसको मसलसल एडमिट भी कर रहे हैं। लेकिन इसे भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि ये दूसरा इलेक्शन है 2018 के बाद जिसमें GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस को मसनूई तौर पे हराया गया है। उनकी सीटें छीनी गई हैं, उनकी सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, आसिफ अली जरदारी को दी गई हैं। 2018 में यहाँ के जो DMG और पुलिस के मुख्तलिफ सोर्सेज थे वो मुझे ये बताते रहे कि कैसे वडेरों ने और आसिफ अली जरदारी ने अरबों रुपए इकट्ठे करके इस्टेब्लिशमेंट को दिए, इदारों को दिए इलेक्शन जीतने के लिए। और उन्हीं सोर्सेस की वजह से मेरे पास ये असेसमेंट थी कि आसिफ अली जरदारी की जो एक्चुअल इलेक्टोरल पोजीशन है सिंध के अंदर, इंदियर सिंध में, जो पिछली दफ़ा 35 के करीब उनको सीटें दी गई थी, वो शायद 20-25 से ज़्यादा वहाँ नहीं ले सकते थे। अब उनकी इलेक्टोरल पोजीशन और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, 20-25 से ज़्यादा सीटें वो कभी भी नहीं ले सकते, उनको 40 सीटें जो दिलाई गई हैं। तो पीर साहब ने यहाँ पे खड़े होकर जो बातें की हैं वो भी बड़ी सुनने वाली हैं। जब वो ये कहते हैं कि मैंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया किसी इलेक्शन कैंपेन, मैंने चलाई ही नहीं, मैं तो घर से निकला ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि कई महीने पहले से पेमेंट्स हो चुकी हैं, अदायगी हो चुकी है इलेक्शन के हवाले से। फिर ये भी देखना ज़रूरी है कि GDA के प्लेटफॉर्म में दूसरी जमातों को भी यहाँ पे बुलाया गया, जमात इस्लामी को बुलाया गया, JUIF को बुलाया गया, यहाँ पे नेशनलिस्ट ग्रुप्स को बुलाया गया, यहाँ पलेजो साहब ने भी तकरीर की। और फिर पीर साहब ने यहाँ तकरीर करते हुए इमरान खान और तहरीक इंसाफ की बहुत ज़्यादा तारीफ की, जब उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के जो 2.25 करोड़ लोग निकले हैं उन्होंने छक्के छुड़ा दिए। इमरान खान का उन्होंने कहा कि वो चोर नहीं है, गलतियां उनसे हुई होंगी, अगर इमरान खान चोर है तो फिर हम सब चोर हैं। तो ये पीर खान जो भी कुछ हुआ है यहाँ पे, आप इसको ये डेफिनेटली तौर पे ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट मूव नहीं है, ये इनिशिएटिव, इसको आप इस्टेब्लिशमेंट के फौज के खिलाफ तो नहीं कह सकते, लेकिन एट द सेम टाइम ये कहना कि ये फौज ने, ये इस्टेब्लिशमेंट ने ये सारी कॉन्ग्रीगेशन कराई है, ये भी उनका शो नहीं था। ये शो एक मैसेज कैरी करता है पीपल्स पार्टी के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए। अच्छा, अब इस सारे मंजरनामे के बाद हम इमरान खान की स्टेज के ऊपर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है उसको हम सम अप कर सकते हैं। आप सुन चुके हैं कि अली मोहम्मद खान साहब निकल के ट्वीट करते हैं कि इमरान खान बड़े मुतमईन हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं, अच्छी सेहत में हैं। इमरान खान कहते हैं कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम फतह मक्का की तरह अपने तमाम मुखालिफिन जो हैं उन्हें माफ़ कर देंगे। इमरान खान बात कर रहे हैं एक ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन के नेल्सन मंडेला की तरह। और फिर रऊफ़ हसन को आप सुनते हैं कि जो एक टेलीविज़न प्रोग्राम में कहते हैं कि हम प्रोटेस्ट तो लॉन्च कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, लेकिन हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को भी तैयार। अब ये जो इमरान खान की स्टेज के ऊपर बहुत ही सोफेस्टिकेटेड, स्मार्ट, पुरएतमाद, कॉन्फिडेंट किस्म की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, ये किन असम्पशंस के ऊपर बेस करती है, इसकी क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से इमरान खान इतने पुरएतमाद हैं, वो 4-5-6 पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपके सामने एक एक करके रख देता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि इमरान खान को ये एहसास हो चुका है कि दुनिया को ये बात समझ आ गई है कि अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ इमरान खान, जिसको कभी तालिबान खान कहा गया, इस्लामिस्ट कहा गया, पागल कहा गया, इमेच्योर कहा गया, ज़िद्दी कहा गया, क्रैकपॉट कहा गया, लेकिन अब पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग ने, पाकिस्तान के तमाम सियासी धड़ों ने और दुनिया भर के ज़राए इब्लाग जो दुनिया में ओपिनियन शेप करते हैं, जिनकी कुछ इमेजेस, उनकी हेडलाइंस के मैं साइड बाय साइड आपको दिखाता चला जाऊं, हाँ वो न्यूयॉर्क टाइम हो, टाइम मैगजीन हो, गार्डियन हो, फाइनेंशियल टाइम हो, डूशे विले हो,
इंटरसेप्ट हो, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, स्काई न्यूज़ हो, CNN हो, ये दुनिया के ऐसे ऐसे अखबारात जिनकी हेडलाइंस मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ साइट पे, जिनका हमने ठीक तरह से पहले नाम भी नहीं सुना था, उन सब ने ये बात रजिस्टर कर ली है कि जेल में बैठा हुआ इमरान खान जो है उसने पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट को नाकों चने चबो दिए हैं। उसने पाकिस्तान के ताकतवर जर्नैल जो गुस्से से भरे पड़े हैं, जिनके हाथ में खौफनाक असला है, जो तमाम इंतज़ामी ढांचे के ऊपर काबज़ हैं, उन जर्नैलों को जेल में बैठे इमरान खान ने बेदस्तपा कर दिया है। बिकॉज लोग सारे उसके साथ हैं। दुनिया को ये चीज़ पता चल गई है, इमरान खान को ये पता चल गया है कि दुनिया को ये चीज़ जो है वो पता चल गई। ये पहला पॉइंट है उस खुद एहतमादी का। दूसरी चीज़ ये है कि दुनिया ने ये तस्लीम कर लिया है, इन हेडलाइंस जो मैं आपको मसलसल दिखा रहा हूँ, दुनिया ने ये तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान का एक लीडर है जो इस वक्त जेल के अंदर बंद है। अगर पाकिस्तान के इश्यूज़ पे मुस्तकबिल पे बात करनी है सस्टेनेबल तरीके से जिसका कोई हल निकलेगा, तो आपको इस इमरान खान से बात करनी होगी। और अगर आप हिंदुस्तान के ज़राए इब्लाग, मैच्योर ज़राए इब्लाग को देखेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया को, हिंदू को, हिंदुस्तान टाइम्स को, दी वायर को, उनके पढ़े लिखे इंटेलिजेंसिया के कमेंट्स आप देखेंगे, तो उन्होंने भी ये बात रजिस्टर कर ली है कि अगर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से बात करनी है साउथ एशिया में इस स्टेज के ऊपर, तो वो आपको मरियम नवाज से, शहबाज शरीफ से नहीं करनी, आसिफ अली जरदारी और बिलावल से नहीं करनी, बिकॉज ये सब पोस्टर बॉयज़ हैं, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। बात आपको करनी है इमरान खान के साथ। मेरी फीलिंग ये है कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मरियम नवाज को, यानी नवाज शरीफ साहब को बहुत सीरियसली लेते थे, लेकिन शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को, बिलावल को, वो कोई घास नहीं डालेंगे और वो भी इनको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेंगे। बिकॉज उनको पाकिस्तान की जो सियासी कैफियत है और जो पाकिस्तान का मंजरनामा है, पाकिस्तान की हकीकत जो है पॉलिटिक्स की, उनको बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुकी। अच्छा, अब ये इमरान खान जो है वो ये मैसेज ये दे रहा है कि मैं तमाम सियासी जमातों के साथ मिल के काम करने को तैयार हूँ, जमात इस्लामी हो, JUF हो, ANP हो, महमूद खान अचरजई की पार्टी हो, TLP हो, मैं सबके साथ मिल के काम करने को तैयार हूँ। मैं 3 धड़ों के साथ बात नहीं करूँगा, उनके साथ काम नहीं करूँगा, पीपल्स पार्टी के साथ, PMLN के साथ और MQM कराची वाले के साथ। क्यों? क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हाँ, हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं। ये वही पोजीशन है, ये देखें, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये वही पोजीशन है जो अफगान तालिबान की 20 साल तक पोजीशन थी, 15-16 बरस तक उनकी पोजीशन थी कि हम अशरफ गनी की हुकूमत के साथ या हामिद कारज़ई की हुकूमत के साथ नेगोशिएट करके कोई अरेंजमेंट नहीं करेंगे, हम असल ताकत के साथ बात करेंगे। बिकॉज हामिद कारज़ई और अशरफ गनी जो हैं वो अमेरिका की ताकत के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब पाकिस्तान के अंदर मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, बिलावल और MQM कराची जो हैं, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बात करनी है तो असल जर्नैलों से बात करनी है, जिनके ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनके मास्क इन्होंने, ये मतलब उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं से बात जो है वो करनी है। सो इमरान खान को ये एहसास है कि ये इमरान खान ये पैगाम दे रहा है कि मैं जीत चुका हूँ, लोग मेरे साथ हैं, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो साबित कर दिया है, अब मैं जेल में बैठ सकता हूँ पेशेंस के साथ, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं जेल में बैठने को भी तैयार हूँ और हम अपोजिशन में भी बैठने के लिए तैयार हैं। आई एम पेशेंट, मैं सब्र से इंतज़ार कर सकता हूँ। आप लोग अपना माइंड बना लें, आपने जो करना है वो कर लें, फिर उसके बाद बात जो है वो हो जाएगी। मैंने आइकानो क्लास मल्टीमीडिया के ऊपर इमरान खान की जो 14 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी 2-2.5 महीने पहले, उसके बाद मैं कुछ वहाँ ज़्यादा काम कर भी नहीं सका, उसकी एक झलक मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आप में से जिन लोगों ने वो नहीं देखी, उसका उन्वान था फ्रॉम अ क्रिकेट सेलिब्रिटी, अ क्रिकेट स्टार टू अ मुर्शद। इमरान खान की जर्नी के बारे में था, उसे एक बार फिर देख लें। Imran Khan turned 71 on October 5th. On this fateful day, he finds himself locked in a death cell. अफगानिस्तान पे कमेंट करने का वैसे टाइम मेरे पास अब बिल्कुल नहीं है, बहुत लंबी बात हो गई है। 18-19 को जो दोहा में मीटिंग हो रही है यूनाइटेड नेशन की, उसकी तफसीलात मैं अगले वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, और अफगान तालिबान क्या कर रहे हैं, चीन क्या कर रहा है, वो सब मैं आपके सामने रखूंगा। अभी इतना ही, फिर मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू।